Yes, class. So the next topic is that overall audit plan and the approach. But this is the answer. I'm just have highlighted the important points over here, that this can be your sub heading of the point, and then you can write down the points as well. But we are not just going to stick on this answer. I'm just giving you one shortcut for this. तो वो शॉर्टकट के थ्रू आप पूरा आंसर कैसे लिख सकते हो ना, दैट वी विल सी. सो दोज हु वांट टू सी द स्लाइड फर्स्ट, दे कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन इट एंड देन वी विल गो टू द शॉर्टकट. चलो हाँ, फॉर दिस आंसर ओनली आई एम गिविंग यू होल ऑफ द दैट की. So what is a heading for this? That what all are the factors that the auditor will be consider while developing an audit plan, overall audit plan. So developing an overall audit plan. Now what is the code for the same? इसका कोड लिख रही हूं यहाँ पर बाजू में. Like how you will be remembering this answer. The code for this is audit. मैंने इस टॉपिक के ऊपर ही इसका कोड वर्ड लाई करता है. what is the this answer? This is for the audit plan. तो इसका जो कोड है वो भी क्या है? Audit plan RN. RN is a extra word. So you can even if you want तो n का स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हो. तो सिर्फ r ही सिर्फ अलग से होगा. So this is the code. Now let's start with the points. Okay, what will be the first point now? From A, auditor's term of engagement is your first point. What you need to write down in the explanation for this audit term of engagement. So the very first thing which you need to know is that the जैसे भी हम कोई staff को appoint करते, we give the appointment letter. The same way, when you appoint the auditor, you need to give the engagement letter to the auditor. Who will be giving the engagement letter? The client will be giving the engagement letter. अब वो एंगेजमेंट लेटर में क्या होगा? द स्कोप ऑफ द ऑडिट, जो भी आपको पूरा स्पेसिफाई करना है स्कोप ऑफ द ऑडिट को. नाउ सपोज इफ इन द केस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी और यू कैन से द कंपल्सरी ऑडिट, वहां पर जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 ने हमें बोला है वैसा हिसाब से हमें क्या बनाना है? एंगेजमेंट लेटर को बनाना है. बट इन द केस ऑफ द नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट वेयर इट इज अ ऑप्शनल, तो ऑडिटर को क्या कंसीडर करना है? ही नीड टू कंसीडर द स्कोप ऑफ द ऑडिट विच इज बीन गिवन इन द एंगेजमेंट लेटर, और एंगेजमेंट लेटर ऑल्सो नोन एज द अपॉइंटमेंट लेटर. So the terms of audit में क्या होगा? Depending upon the scope of the audit, the auditor needs to complete his work. Second point. So from the A we have completed. Now we are going from U. Second one. From U it is understanding the nature and timings of reports, and even we can add one more thing in it, and other communication. Now what we need to give the explanation for this. So auditor may be conducting the tax audit as well, but tax audit कब हम start कर सकते हैं? When we have completed our statutory audit. So after doing the statutory audit,
बैलेंस शीट जैसे ही हमने कंप्लीटली रिव्यू कर दिया, पीएनएल जैसे रिव्यू कर दिया, फिर हम टैक्स ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं. सो यू नो ही मे हैव टू प्रिपेयर सम अदर रिपोर्ट्स एज वेल फॉर द सबमिशन पर्पस. नाउ ये सारे जो भी रिपोर्ट्स है, इसका जब भी टैक्स ऑडिट करोगे उसका रिपोर्ट कहाँ पर देना है, यू हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट की अथॉरिटीज. सो यू नो द ऑडिटर इज यू नो एक्सपेक्टेड कि वो जो भी प्रेजेंटेशन कर रहा है एट द एंड ऑफ द ऑडिट, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन करे एज एंड व्हेन द क्लाइंट इज अ नीड, कि ऐसा लग रहा है ऑडिटर को कि क्लाइंट यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकता है, द इंप्रूवमेंट आर नीडेड इन दिस एरियाज. तो ऑडिट, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू गिव द सम यू नो इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स फॉर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ऑडिटर अभी ये बेसिस के लिए अपना प्लान को भी रिव्यू कर सकता है कि उसने प्लान में क्या किया. Then as if this in point, they are also mentioning the timings. Timings means that the audit needs to be completed within a specific time which has been mentioned in the audit plan. And as I told you, it's not necessary कि you cannot change the audit plan in between. Yes, if the need arise, you can even change the audit plan in between. But जो time limit है, तो better है कि आप जो अपना audit के plan और procedure को ऐसे manage करो कि वो जो within a stipulated time it get complete. So here the auditor needs to understand the nature as well as the timing. That he needs to consider the time bound as well. Now the third point from D. Designate significant audit areas. Now, what we mean by a designate significant audit areas? Here, you see, yeah, there will be a certain areas which will be prone to the risk. ठीक है, हर एक ऑडिट में एक ऐसी एरियाज होती है कि जहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर रिस्क है, या अगर ये वाली आइटम्स मैंने चेक नहीं की तो यहाँ पर गलती मिल सकती है. तो सी अब ये वाला कैसे पता चलेगा, अगर ये एक ही ऑडिटर है जो प्रीवियस ईयर भी इसने ही ऑडिट किया था, सो थ्रू द प्रीवियस ईयर का ऑडिटिंग ही कैन फाइंड इट आउट कि कौन कौन सी एरियाज है जहां पर गलती मिल सकती है. सो ही नीड टू कंसिडर द पास्ट एक्सपीरियंस फॉर द सेम, एंड डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंस ही शुड कंसिडर द एरियाज. ना मुझे पता है कि जो नॉन रिकरिंग इनकम्स है जो मुझे बार बार नहीं होने वाली है, मे बी उसके अंदर 5,000 की इनकम के बदले उन लोग ने 10,000 दिखाया हो. नाउ वाइल डूइंग इन द पास्ट, जब मैं ऑडिट करी थी तो मुझे पता चला था कि इन लोग ने इनकम लिखने में गड़बड़ की है. तो दिस टाइम फॉर दिस ईयर व्हेन आई एम डूइंग द ऑडिटिंग, व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं सबसे पहले वो सारे एरियाज की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपरली उसको चेक करूंगी, and then only I will be giving the comment on it. So through the past experience, the auditor always, you know, they know कि कौन-कौन से areas है जो जहाँ पर risk ज़्यादा हो सकता है. So they will be specifically checking all that certain areas only. So designate the significant audit areas. Fourth one. So we have completed from A, U, and D. Now from I. Involvement of others in the audit. Now, who all are the others which we require in the auditing purpose apart from the main auditor? So see, while planning the auditor has to consider all the others involvement as well, because the auditor has to reliance on them. ठीक है, auditor एक ही auditor इतने सारे companies की audit, as I told you कि 20 is the limit. ठीक है, एक साल में वो 20 ऑडिट्स कर सकता है कंपनी के ऑडिट्स. सो बट ही कैन नॉट डू, वो हर एक जगह पर नहीं पहुंच जाएगा. सो ही व्हाट ही विल बी डूइंग, he will be appointing the audit staff for the same. Even the auditor need to rely on the experts for valuation purpose. We discuss this कि उसको lawyer के पास engineer, valuer ये सारों लोगों का भी help चाहिएगा. He also require a joint auditor. He also require the auditing staff for the same. हमारी जो हमें ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि जहां पर हम अपने जो ऑडिट स्टाफ है
उसको भी प्रॉपरली एंगेज कर पाए, एज वेल एज कि हमें जिसके ऊपर डिपेंड करना है, जैसे वैल्यूअर है, इंजीनियर है, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स है, तो हम उसको भी कंसिडर कर सके. सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर्स इन द ऑडिट. So we have done from A, U, D. Now we have to do from the T. Now T means the areas covered by internal auditor. कंपनी का अगर खुद का भी एक इंटरनल ऑडिटर होता है, जो उसका जो स्टाफ होता है वो ही क्या करेगा, वो पहले सबसे पहले चेकिंग करके रखेगा. ही विल फर्स्ट वेरीफाई ऑल द थिंग्स, ही विल बी डूइंग द वाउचिंग पार्ट एज वेल. तो क्या करेगा, तो एक्सटर्नल जो ऑडिटर होगा, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, फिर वो सिर्फ वहां पर जो एरियाज इंटरनल ऑडिटर ने डिटेल में चेक की होगी, ही विल बी अप्लाइंग, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटर विल बी अप्लाइंग ओनली द टेस्ट चेक ऑन दोज एरियाज. ठीक है. जो भी उसका बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंटरनल ऑडिटर हैज वाउच ऑल द एक्सपेंसेस फॉर ऑल द मंथ्स, से पूरे पूरे साल के उसने जितने भी एक्सपेंसेस थे उसको सबने प्रॉपरली उसने वाउच किया है, तो फिर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, दैट इज जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, वो सिर्फ वहां पर टेस्ट चेक अप्लाई करेगा. क्या करेगा, आउट ऑफ 10 ट्रांजैक्शन ही विल बी चेकिंग ओनली 5 इन द डिटेल्स. ठीक है. सो रेंडमली कोई भी एक ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके देन ही विल बी चेकिंग इट आउट. एंड दैट आल्सो नॉट फॉर द होल ऑफ द सारे मंथ्स को नहीं, ही विल बी चेकिंग इट फॉर द फ्यू मंथ्स. तो ही नीड टू कंसिडर कि हम कितना अपने इंटरनल ऑडिटर के ऊपर भी डिपेंड रह सकते हैं. ठीक है. एंड इफ द इंटरनल ऑडिटर हैज डन इट्स पार्ट प्रॉपरली, तो फिर वो क्या करेगा, डिटेल चेकिंग नहीं करेगा. ही विल बी अप्लाइंग ओनली द टेस्ट चेक इन दोज एरियाज. So we have completed with the word audit. Now we need to start with the plan. Any doubt till your class? Any doubt till here? Just acknowledge in the chat box. No, fine. Chalo, the sixth point from the P, that is plan or the set materiality. Now what is the planning or doing setting up the materiality? Materiality, as I told you that materiality का मतलब होता है important transactions. What is important that needs to be highlighted. तो द ऑडिटर हैज टू सेटअप ना, हर एक ऑडिट में उसको एक लेवल को सेट करना पड़ेगा वाइल डेवलप. कब ये करना चाहिए, वाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान. अब जो भी मटेरियल लेवल होगा दैट विल बी सेटअप डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑडिटर का कितना रिलायंस है ऑन द इंटरनल कंट्रोल, फिर उसका ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा था, उसके ऊपर डिपेंड करता है. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज द ऑडिटर इज डूइंग द ऑडिटिंग ऑफ द टाटा मोटर्स. अब टाटा मोटर्स में देखो 1000 टू ट्रांजेक्शन 1000 के जो ट्रांजैक्शन होंगे वो बहुत कम होंगे. ऑब्वियसली इसके जो कंपनी है वो काफी बड़ी है, तो इसके जो ट्रांजैक्शंस भी होंगे वो कैसे होंगे, सारे ट्रांजैक्शंस बड़े बड़े होंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो एक लेवल सेटअप कर देगा. तो वो सोचेगा कि अभी मेरे को वाइल डूइंग द ऑडिटिंग जितने भी से फॉर अबाउ 1 करोड़ के जितने भी मेरे को ट्रांजैक्शंस मिले वो मैं सारे इन डिटेल चेक करूंगा. So what he has set? He has set one standard. He has said, okay, about this, I will need to check each and everything in the detail. So how you can set the standard depending upon the organization का type के कैसा है, हम कितना internal auditor पे. अगर वो ही कोई छोटे फर्म का करता होगा तो वो क्या सोचेगा, 50,000 के ऊपर जितने भी मेरे ट्रांजैक्शंस हुए मैं उसको सारे को डिटेल चेक करूंगा. सो हियर यू सेट वन स्टैंडर्ड, और वो आप डिपेंड, वो जो इम्पोर्टेंस जो है उसका वो कैसे हम किसके ऊपर रिलाई करके सेटअप करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, how much we can rely on the internal auditor, and what was the past experience of the auditor. Depending upon that we consider this plan. 7th from L is laying of emphasis on specific audit areas. Now see class, there are various areas that are been audited by the auditor. अब ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ expenses या तो income ही vouch करेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. So he will be giving, since he is been doing the auditing of all the areas, he will be
लेइंग द स्ट्रेस ऑन द सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज, जो उसको लग रहा है कि वो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे एरियाज जहां उसको लग रहा है कि ठीक है, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक्स नहीं हो सकती, यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, तो वो सारे एरियाज को इतना फोकस नहीं करेगा। बट जहां पर उसको लग रहा है, सी यू कैन यू नो ये जो इसका जो पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, इट इज समवेयर सिमिलर टू दिस वन। डेजिग्नेट सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, जो थर्ड पॉइंट है ना वो, और जो सेवेंथ पॉइंट है उसका एक्सप्लेनेशन इज लिटिल बिट सेम. So what the auditor will be doing, he will be using the rotating system, and while this he will be changing the emphasis. अब एक example लेती हूँ जिससे तुम लोगों को बहुत clear हो जाएगा. Say for example we have a Hetal with us, and Hetal is a chartered accountant and she has gone for the auditing purpose. अब हेतल ने क्या किया था 1920 में, वो 2 years से ऑडिट कर रही है. 1920 में she had given the more of the importance to the इम्पोर्ट परचेज. ठीक है, अब वो जो हमारा क्लाइंट है वो इम्पोर्ट भी कर रहा है एज वेल एज एक्सपोर्ट में भी डील कर रहा है. तो उसने 1920 में क्या किया होगा, हेतल ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था इम्पोर्ट परचेजेस को, एंड उसके जितने भी ट्रांजैक्शन थे वो इन डेप्थ में उसने सारे पढ़े. अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर रोटेटिंग सिस्टम होगा. नाउ व्हाट शी विल बी डूइंग इन दिस इन 2021, वो अब क्या करेगी, जितने भी डोमेस्टिक परचेजेस हुए थे और जितने भी एक्सपोर्ट परचेजेस थे, जो भी एक्सपोर्ट हुआ है वो ज्यादातर वो चेक करेगी. सो सी उसने क्या किया, शी इज डूइंग द रोटेटिंग पर्पस. पहले इम्पोर्ट जो भी इम्पोर्ट परचेजेस था वो चेक किया, और अब ये ईयर के लिए वो किस पे ज्यादा एम्फेसिस कर रही है, ऑन द डोमेस्टिक परचेजेस. और इवन शी कैन पुट मोर ऑफ द गिव मोर ऑफ द इम्पोर्टेंस टू द एक्सपोर्ट एज वेल. सो देखो, हमारा इसके वजह से प्रीवियस ईयर में हमारा इम्पोर्ट भी चेक हो गया, और ये साल हमारा जो भी है डोमेस्टिक परचेजेस भी चेक हो जाएंगे. तो दोनों का डिटेल चेकिंग हो गया. सो your audit plan should be as such that you should be focusing on all the specific areas. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक एरिया को फोकस करेंगे और नेक्स्ट ईयर उसका नहीं, हम रोटेटिंग बेसिस पर हम जितने भी एरियाज है वो सारे एरियाज को फोकस करना है. 8th पॉइंट, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए. तो अवेलेबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज of the audit staff. Now, it is a duty of an auditor class to place the right audit staff at the right audit. ठीक है, अब से फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टाफ है, वो टैक्स ऑडिट में बहुत अच्छा है, वो प्रॉपरली सारे चीज डिटेल में चेक कर देता है. मुझे उसको गाइडेंस देना पड़ता है बट इतना सारा नहीं. तो फिर मैं वो वाला जो मेरा ऑडिट स्टाफ है उसको मैं सिर्फ टैक्स ऑडिट के लिए ही यूटिलाइज करूंगी. So depending upon the work, the amount of the work which the audit staff is doing, depending upon their expertise, depending upon their competency, the auditor need to decide the requirement, and then only he need to appoint the audit staff accordingly. Because almost जो भी 50 to 60% of the work होगा वो सारा कौन देखेगा, वो ऑडिट स्टाफ ही देखेगा. फिर जो ऑडिट स्टाफ ने जो काम किया है उसका सिर्फ वो रिव्यू लेगा कंप्लीटली, वो सिर्फ एक बार उसको व्यू कर देगा बस, फिर वो डिटेल में वो चेक नहीं करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर वो सारी चीजों. तो नाउ फ्रॉम द एन, न्यू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट. Now, we all know that in the area of the accounts, in the auditing area, जब भी हम एक प्रोफेशनल बॉडीज के साथ अटैच्ड है. अब हमारे पास जो ये है वो कौन सा है, ICAI. जो भी वेरियस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट है वो कौन देगा, ICAI देगा, एंड इवन द अदर प्रोफेशनल बॉडीज एज वेल. तो वी नीड टू कंसिडर कि अगर कुछ भी लॉज में चेंजेस आ रहा है
तो ये सारे जो भी चेंजेस होंगे वो हमें कंसिडर करके अपना ऑडिट प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि एवरी ईयर मैं सेम ऑडिट प्लान रख रही हूँ, नो, एवरी ईयर देयर आर द माइनर माइनर चेंजेस व्हिच आर बीन हैपनिंग, सर्टेन लॉज आर गेटिंग चेंज। तो मुझे वो सारों का इम्पैक्ट देखने के बाद आई नीड टू प्लान द ऑडिट, तो प्रॉपर पर्पस में और प्रॉपर हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। Now the 10th point. So we have completed the word audit, we have completed the word plan. Now we are going for R and N. So from the R, reliance on the internal auditor. How much you can rely on the internal auditor? वो वाला point यहाँ पर, depending upon that we can prepare our auditing plan. Internal auditor as well as our internal controls, कि हम कितना वो कंपनी के internal control पर depend कर सकते हैं. So now class, this plays a very important role in developing our overall audit plan. If the auditor is not want to rely on the internal control of the organization, तो फिर उसको जितना भी areas है, he need to do the detailed checking, he should increase the extent of the checking, and accordingly he need to give the more time, he need to devote the more time to the audit. अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, इनका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो काफी अच्छा है, तो फिर मैं कुछ कम थोड़ा सा कम टाइम कर सकती हूँ, फिर वो मेरा ऑडिट थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैं जो थोड़े ट्रांजैक्शन है उसको भी टेस्ट चेक में डाल के सैंपल चेकिंग करके आई कैन मूव फर्दर। बट इफ ऑडिटर को यकीन नहीं है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे, देन व्हाट ही नीड्स टू डू, he need to increase his checking, and he need to even increase the time of the audit. He need to devote his more time for that audit then. So from the R, you can, how much you can rely on your internal control. And the last point from the R is nature and extent of audit evidence. Now nature and extent of audit evidence, what it means, now देखो, एक जो audit evidence होता है वो proof होता है that the auditor has conducted this audit properly, उसने properly पूरा जो भी audit है वो properly उसने किया है। Now therefore the auditor को ऐसा plan select करना चाहिए जो nature and extent of the audit evidence भी देखे, and he needs to collect all those proofs जो भी उसको required है for the auditing purpose. He should collect all the evidence while conducting an audit. तो वी शुड डिसाइड, पहले से ही हमें डिसाइड कर लेना है कि मुझे जितने भी जो प्रूफ्स है, मुझे कौन कौन से प्रूफ्स मेरे क्लाइंट से लेना है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट ओनली आई नीड टू प्लान इट अप. So this was the answer for the developing an overall audit plan, and this code for the same was what? Audit plan RN. So by this, you can do whole of this answer. You can complete your answer as well.